Yes, yes, yes. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Mustafa loves Baba Black Sheep, and you should sing it too. And then no, Adina. So savage. Yes, I know I'm savage. Thug life. Wow, amazing. So Suleiman is actually, a gangster. Okay, I'm joking. Acha ji, let's start. Let's start with our chapter, lecture number 3, acid, bases, and salts. We're already done with the basic introduction to what an acid is, what a base is, what a salt is. A salt is actually any ionic compound, just in your O levels IGCSE knowledge. A salt is just any ionic compound, right? So we've done the basics of what an acid is, what a base is. An acid is a proton donor, a base is a proton acceptor according to Bronsted-Lowry acid-base theory. And then we've also studied Arrhenius acid-base theory, that an acid is any substance which ionizes to give the H plus ion when dissolved in water, and base is any substance which ionizes to give the hydroxide ion when dissolved in water, right? So we've done all of that stuff, and we've written dissociation equation. We've learned all of that good stuff. Then we learned the concept of an indicator. An indicator is actually any chemical substance which gives a different color in an acid and different color in a base. And then we came across the concept of a pH scale, and based on that we developed the universal indicator, which was Roig Biv: red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. And red, orange, yellow was the colors of acids. Green was neutral, and blue, indigo, and violet was actually the color of bases, right? And then we realized that the more acidic a solution is, the more towards the red it'll be, and the more basic the solution is, the more towards the violet and it will be, right? And then we learned green is neutral, and if there's a weak acid it'll be orangish, yellowish, and if there's like a weak base it'll be bluish, indigo-ish, right? And then we studied all of that good stuff. We also learned what a strong acid is, the definition of a strong acid, the definition of a weak acid. Strong acids are those acids which fully ionize when dissolved in water. Weak acids are those acids which partially ionize when dissolved in water. And similar is the case for strong base and weak base, right? Now, today what we are going to do is we're going to learn the most important bit of your acid, bases, and salts, and that is also commonly tested in your syllabus. Like every time when you are tested with acid, base, and salts questions, the examiner is going to test these reactions, right? So let's talk about the reaction. The first reaction that you need to know is whenever a metal reacts with an acid, it's going to give you salt, and it's going to give you hydrogen gas. Let's do a few examples for it, right? So whenever a metal reacts with an acid, it gives me salt and hydrogen gas. Let's take sodium metal as an example. So sodium metal, acid, let's take hydrochloric acid. So sodium metal reacts with hydrochloric acid. It's going to give me a salt. What is a salt, guys? A salt is actually any ionic compound, right? And hydrogen gas is H2. Let's first of all write the hydrogen gas. So hydrogen gas banega or salt banega. Which salt will form? Well, you have sodium right here and you have Cl right here. So sodium and Cl will combine together to give you NaCl, and hydrogen gas is going to form. I'm not balancing it, I'm just writing the equations right now, right? For example, you have magnesium and it reacts with hydrochloric acid. It's going to give you a salt, which is basically magnesium and Cl. They are going to combine together to form a salt, which is MgCl2, and hydrogen gas is going to form. I'm not giving you guys any logic for now. Yes, walaikum salam. I'm just writing equations. Then let's suppose you have lithium. It reacts with hydrochloric acid. It's going to give the lithium and the chloride ion are going to react together to give you lithium chloride, and it's going to give you hydrogen gas. Now the question is, this is actually a reaction that's going to take place in the universe. Whenever you have metal, it's going to react with acid to give you the ionic compound, which is going to be salt, and it's going to give you hydrogen gas. The question is, why does this happen? That's the question. And if you understand the why behind it, everything is going to just fall into place, right? Everything is going to just melt together, and you guys are going to be like, wow, that's so amazing. Well, the reason this reaction takes place is, if we look at all three of these reactions, whenever sodium reacts with hydrochloric acid, you know what is an acid, everybody? I'm now giving you guys the logic behind it. What is an acid, everybody? An acid is any substance which gives the hydrogen ion when dissolved in water, right? Because it's aqueous in this case. So it will give you the hydrogen ions when dissolved in water. So HCl aqueous का क्या मतलब है जनाब? HCl aqueous का अगर मैं इसको तोड़ के दिखाऊं, so that means you have the H plus ion and the Cl1 minus ion. True?
H plus ion and the Cl 1 minus ion. Now what the sodium is going to do is sodium is going to make its ion. Sodium is in group 1 and you have chloride ion right here. So sodium kya karega? Sodium will want to displace this hydrogen. Sodium is gonna be like, hey hydrogen, move out. I don't like you. I wanna make, bond with chloride ions. I wanna be, chloride's best friend. So sodium pushes the hydrogen out. It displaces the hydrogen out, and this H says, where shall I go? Where shall I go? Well, it converts into hydrogen gas. So the hydrogen is pushed out and the only thing left is the sodium and the chloride. And so sodium ion and chloride ion, they are gonna form NaCl. Why? Because sodium is in group 1, it will make the 1 plus ion. Chloride is all obviously in group 7, so it has the 1 minus ion. They're gonna combine together to form NaCl, and the hydrogen which was kicked out is going to convert into hydrogen gas. Similar is the case with magnesium. Magnesium is a metal. If it reacts with an acid, what's going to happen is this magnesium is going to say, hey hydrogen, I don't like you, move out. I want to be, making love to chloride ion. I want to be its best friend. So it kicks the hydrogen out, and therefore hydrogen gas is formed, and the magnesium is going to react with the chloride ion to form magnesium chloride. And the question is कि सर इधर तो 1 mg है. ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको मैं बैलेंसिंग में एड्रेस करूंगा. मेरे बचपन में मुझे ना बहुत तंग करते था ये कि इधर तो 1 mg है और 1 Cl, इधर 2 कैसे आए. Well, basically you had mg is in group 2, so it's gonna make the 2 plus ion, and chlorine is in group 7, so it's gonna make the 1 minus ion, which is the chloride ion. Your chemical bonding is tested here. So magnesium has a 2 plus charge, chlorine has a 1 minus, chloride ion has a 1 minus charge. You cross multiply, you get MgCl2, and the hydrogen that was kicked out makes the H2 gas. Now let's look at the third equation. Lithium reacts with hydrochloric acid. Lithium is going to say, hey hydrogen, I don't like you, move out, get away. You're going to go and you're going to not be alone. You're actually going to form hydrogen gas. What is left behind? You're left behind with lithium and you're left behind with Cl. And recordings kahan par hoti hain guys? Google Classroom में upload hoti hain, explain everything pe. Okay. And then so the lithium ion is going to form a bond with the chloride ion. Lithium is in group 1, it'll have a charge of 1 plus. Chlorine is in group 7, it'll make a chloride ion which is 1 minus. So LiCl is going to be the formula. Remember, ye jo main idhar likh raha hu, I am making this magnesium chloride by writing formulas. Let's do some more examples abhi. That's it. That's the first equation. अब हम सिर्फ examples का. I'm not teaching you guys balancing yet. Balancing पढ़ते हैं थोड़ी देर तक. First of all, I'm just giving you guys more examples. Let's take another example. Lithium plus sulfuric acid. नाम अब आपको आने चाहिए कि this is sulfuric acid. Moles में पढ़े हैं सारे नाम. Okay, what's lithium gonna say? Lithium's gonna say, hey, I'm a metal and this is an acid. Whenever metal reacts with an acid, it forms salt and hydrogen gas. Why? Because the hydrogen is pushed out. Lithium says, hey hydrogen, I don't like you, move out, give me the sulfate ion. So what's left is lithium ion and sulfate ion. The lithium ion is in group 1, it has a charge of 1 plus. Sulfate is a polyatomic ion, it has a 2 minus charge. You guys already know that. So the formula for lithium sulfate is going to be cross multiply Li2SO4. That's the formula. So that's the salt that will be forming. Another example, calcium plus maybe like H2SO4. Karen, please. Calcium says, hey hydrogen, I don't like you, I'm going to displace you. Oh sir, use the word displace. I use the word displace because this is actually a displacement reaction. Why is this known as a displacement reaction? That is the whole reason why it's known as a displacement reaction, because the metal displaces the hydrogen in the acid. That's why it is a displacement reaction. So what is a displacement reaction? A question can be asked in your paper. The reaction in which a metal displaces the hydrogen in the acid. That's why it's known as the displacement, right? It displaces. Displace की जगह आप replace भी कह सकते हैं, but displace is the more scientific word, right? So lithium goes, hey hydrogen, I don't like you, I'm gonna displace you. So it displaces it and it forms the salt, which is lithium sulfate and hydrogen gas. Adina, will the salt be aqueous or solid? I'm not discussing that because I've not taught you solubility. जब solubility पढ़ा लूंगा सारे state symbols आपको पता हो जाएंगे कि ये aqueous है, solid है, gas है. ये तो पता है ना कि gas है. अब ये aqueous है, solid है, जो भी है ये आप solubility के बाद सारे खुद लिख पाएंगे. Okay, don't worry about it. Okay, so calcium reacts with sulfuric acid. Calcium is going to displace the hydrogen and is going to form hydrogen gas. And what is left?
The calcium is left and the sulfate ion is left. So calcium sulfate is gonna form, calcium has a charge of 2 plus, SO4 is 2 minus. आपकी लॉजिक के साथ 2 और 2 कट गया, CaSO4 बन गया. लेकिन असल लॉजिक क्या है कि the charges are balanced. अब इधर मैं remember when I'm teaching you guys balancing, you guys should use the concept of chemical bonding जो मैंने पढ़ा है. तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा पहले मेरे से, I'm sorry guys, मैं क्या कर सकता हूँ. बस आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला असल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होती. ये 1 प्लस और 2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स just a trick. The real reason is कि the charges must be same. So 1 plus के लिए कितने minuses चाहिए? इधर 2 minuses हैं और इधर 1 plus है. So 2 minus के लिए कितने pluses चाहिए? Obviously 2 pluses चाहिए. This is only 1 plus. तो कितने lithium ions चाहिए? 2 minuses के लिए 2 plus होने चाहिए. That's why you need to have 2 lithium ions. Because 2 into 1 plus you get 2 plus. तो 2 plus के लिए 2 minus. That's why it's a neutral compound. तो Li2SO4 ऐसे बनता है because you have 2 lithium ions and 1 sulfate ion. एक sulfate ion के लिए 2 lithium ions चाहिए. 2 माइनस के लिए 2 प्लस होना है. लेकिन हम क्या कहते हैं, हम बस कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. अब ये कॉन्सेप्ट मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा जो मैंने अभी कहा है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया भी हुआ है. कैन यू प्लीज रिपीट द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाई डू यू वांट मी टू रिपीट इट? आई जस्ट गिव यू अनदर एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट अगेन. बेरियम reacts with phosphoric acid. What's gonna form? This barium is a metal, this is an acid. Whenever a metal reacts with an acid, it forms a salt and hydrogen gas. How do I know it's gonna form salt and hydrogen gas? Because the barium is going to displace the hydrogen, H2 is gonna form, and what else is gonna form? You have the barium ion now, and you only have, अब क्या रह गया? Hydrogen gas तो बन गया, H की कहानी खत्म हो गई. Now you only have the barium ion and the phosphate ion. So barium ion has a charge of 2 plus, phosphate has a charge of 3 minus, cross multiply, you get Ba3PO4 whole twice, right? And that is why this is known as a displacement reaction, because a displacement reaction is that reaction in which a metal, see देखिए अपने अल्फाज में लिखिए, in which a metal displaces the hydrogen in the acid, displaces or replaces. That reaction in which a metal displaces the hydrogen in the acid, ये acid है ना, so phosphoric acid. So the metal displaces the hydrogen in the acid. इधर तक कहानी ठीक है, सही जा रही है. You want me to give you another example? Let's say like aluminum. Aluminum reacts with like H2SO4. Whenever a metal reacts with an acid, it's gonna form what? It's gonna form salt and hydrogen gas. Even if you don't know, the metal is more reactive than what am I saying? The metal is going to say, hey hydrogen, I don't like you, move out. So H2 gas is gonna form, and what is left? You have the aluminum ion being left and the sulfate ion. So salt क्या बनेगा? Aluminum makes an ion of 3 plus, sulfate has a charge of 2 minus, cross multiply, you get Al2SO4 whole thrice. That's what's gonna form. अब मैंने एक लफ्ज कहा जिसमें मैंने कहा, oh my god, what am I saying? I shouldn't be saying that. वो मैं दोबारा कहने लगा हूं. I said कि aluminum says hydrogen move out, I don't like you, you go into hydrogen gas and I'm gonna form the salt, I'm gonna form a bond with sulfate ion. But that's not what happens. Aluminum बातें तो नहीं कर सकता ना कि says hey hydrogen move out. No, it can't do that. The reason why aluminum is able to displace the hydrogen, the reason why aluminum is able to displace hydrogen, or barium is able to displace hydrogen, or calcium is able to displace hydrogen, or lithium is able to displace hydrogen, or magnesium is able to displace hydrogen, is because they are more reactive than hydrogen. That is the only reason this reaction is taking place. It doesn't go like, hey, hydrogen, I don't like you, move out, you go form hydrogen gas and I'm gonna form a bond with chlorine. No. That's just, a story for you guys. The real reason why this reaction takes place is because metal, the more reactive metal displaces the hydrogen. Why does the metal displace the hydrogen in the acid? Because it is more reactive than hydrogen. How do you know sodium is more reactive than hydrogen? How do we know? काश इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेते, बताएं जी. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी. याद आ रहा है कुछ? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ीब्रा. इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड. लेट मी शो यू. मैं दोबारा अब सारा तो नहीं लिख सकता, मैं तो टाइम ही ज़ाया होगा. मैं दिखा देता हूँ जो हमने बनाया था. यस योर रिएक्टिविटी सीरीज टेल्स यू दिस. तो अगर हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को देखें
तो upsie daisies, अगर हम अपने oh my god everything is just a mess. Okay, अगर हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज को देखें तो all the metals are actually more reactive than hydrogen except for copper, silver, gold. अब अगर मैं आपको एक बात करूं कि sodium reacts with phosphoric acid. First of all, the question is, whenever a metal, sodium is the metal and this is the acid, whenever a metal reacts with an acid, what is it going to form? Well, it's obviously going to form hydrogen gas. How do I know it's going to form hydrogen gas? Because this sodium is going to be like, hey, hydrogen, I don't like you, move out, and it's going to form salt. तो ये बहुत लॉजिकल बात है ना, हाइड्रोजन निकल जाएगा, बाकी पीछे क्या रह गया? सोडियम रह गया और फॉस्फेट रह गया, और सोडियम आयन एंड द फॉस्फेट आयन आर गोना मेक द सॉल्ट. दैट्स वेरी लॉजिकल. बट द रीजन व्हाई हाइड्रोजन इज किक्ड आउट इज बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. माय क्वेश्चन इज, व्हाट इफ सोडियम वाज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? Let's assume for a moment, what if sodium was less reactive than hydrogen? It's not the case. Real life में तो sodium is one of the most reactive metals. But if sodium was, God forbid, less reactive than hydrogen, it wouldn't be able to displace the hydrogen in the acid, and therefore there would be no displacement reaction. And just like that, you have certain metals which are less reactive than hydrogen. So I say copper जो है वो HCl के साथ react करेगा. What is it going to form? Copper 2 है मेरे पास. So copper के ऊपर 2 plus charge है, Cl के ऊपर 1 minus है. Copper is gonna be like, hey hydrogen move out, H2 गैस बनेगा और copper chloride बनेगा. बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा. हाँ ऐसे ही होगा सर. आपने कहा था whenever there is a metal which reacts with an acid is going to give you salt and hydrogen gas. तो ठीक है, यही बनेगा. बिल्कुल सारे सही कह रहे हैं. Why not? Why are you guys saying no? Why are you guys fighting with me? बनेगा तो यही, बनना तो यही चाहिए वैसे. Why? सारे नो कह रहे हैं, वजह कोई नहीं. Yes, Dua, that's not the right statement. Copper is less reactive than hydrogen, not H2. Hydrogen है, बस hydrogen का है, H का है, right? So because copper is less reactive than hydrogen, it will not be able to displace this hydrogen, and therefore there will be no reaction. So everybody is correct. कॉपर, सिल्वर या गोल्ड अगर हो तो ऑब्वियसली ये सवाल बहुत कॉमन है, पेट क्वेश्चन. Why will copper not react with hydrochloric acid? Well, because why? Copper is less reactive than hydrogen. हाइड्रोजन वर्ड्स में लिखें, देन हाइड्रोजन वर्ड्स में नहीं लिखना तो H लिखें, H2 ना लिखें. So copper is less reactive than hydrogen, therefore it cannot displace it. तो मेटल प्लस एसिड जो है इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? अच्छा, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं इसको क्या रिएक्शन कहते हैं? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. प्लीज इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहते. दिस इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाई इज इट नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बिकॉज सिंपल सी बात है, द मेटल displaces the hydrogen in the acid. That's it. That's why it's known as a displacement. Because the metal, which is more reactive than hydrogen, displaces the hydrogen in the acid. That's why it's known as a displacement reaction. That's it. Okay, good stuff. Now, let me teach you the concept of balancing. अब ये बैलेंसिंग जब आप लोग पढ़ेंगे आप कहेंगे wow sir, you're so amazing, how are you able to do this? I'm gonna say it's just logic. Okay, so let's learn balancing. I'm gonna write these equations again. और मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग के पीछे कॉन्सेप्ट पूरा. बेसिकली ये बचपन से आज तक आज तक तो खैर नहीं, बचपन से जब मैं ओ लेवल्स में होता था मैं बहुत कंफ्यूज रहता था. और मैं आपको बताऊं ये कंफ्यूजन हर बच्चे का होता है. बच्चा कहते नहीं बस ईमान ले आओ बात पे, बस जो सर कह रहे हैं सही कह रहे हैं. बच्चों की कंफ्यूजन जो मेरी भी कंफ्यूजन होती है, शायद आप में से भी बहुत लोगों की कंफ्यूजन हो कि सर सोडियम जब इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेता है तो ये तो एक H है, इधर 2 H कैसे आ गए? This was a question that haunted me for the entirety of my O levels. मैं कहता था यार क्या बकवास है कि ये इधर एक हाइड्रोजन है उधर 2 बन रहे हैं, क्या चल रहा है? Basically, the logic behind this is balancing. Adine is saying yes. अब जब बैलेंसिंग आपको समझ आएगी तो आपको ये सारी कहानी मैं बताऊंगा. बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? What does law of conservation of energy tell us? Energy can neither be created nor destroyed, right? Similarly, law of conservation of mass क्या कहता है?
mass cannot be created nor destroyed. It is only converted from one form to another, right? Therefore, based on these two theories, जो हमने introduction to chemistry class में पढ़ी थी, in our first lecture we said that John Dalton, who is not known as the father of chemistry, but who came up with the atomic model, you know, the John Dalton atomic model जो था, तो उसके साथ जब वो आया, he also proposed the concept of balancing. उसने कहा कि just like mass can neither be created nor destroyed, energy can neither be created nor destroyed, similarly according to John Dalton's atomic theory, उसने कहा atoms can neither be created nor destroyed. Atoms can neither be created nor destroyed. एटम्स ना बन सकते, ना जितने बस यूनिवर्स में इनिशियली बन गए उतने ही एटम्स हैं दुनिया में, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. आखिर में काम तो फिजिक्स की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ही आई ना. या तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, राइट, विच मीन्स दैट एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड. इजंट दैट ट्रू? प्लीज राइट ऑल द एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यू हैव सोडियम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव क्लोरीन ऑन द लेफ्ट हैंड. कितने सोडियम है? एक एटम है सोडियम का. हाइड्रोजन के कितने एटम है? एक. क्लोरीन का कितना एटम है? एक. सोडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, कितने एटम्स है? सोडियम के एटम है एक, हाइड्रोजन के एटम है दो, क्लोरीन के एटम्स है एक. जनाब बताएं, आर एटम्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल? यस, नो? Yes, no. No, they are not equal. देखें क्या क्या नहीं है इक्वल. सोडियम 1, सोडियम 1, boom, they are equal. क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, boom, they are equal. हाइड्रोजन 1 and हाइड्रोजन 2, they are not equal. तो 2 को मैंने 1 बनाना है. 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए? 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई, इधर रफ वर्किंग करें. 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए? मैथ्स करूं. 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए? x इज इक्वल टू 1/2. तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, ये 1/2 इधर प्लग करें, बूम, दैट्स द बैलेंस्ड इक्वेशन. 0.5 नहीं कहना, डेसिमल्स नहीं होते केमिस्ट्री में, प्लीज 1/2 कहना. दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. अच्छा, आपके ओ लेवल्स और आईजीसीएसई में कहते हैं कि ठीक है फ्रैक्शन सही है, बस ठीक है, लेकिन मार्किंग स्कीम में अक्सर होल नंबर्स में लिखे होते हैं. फ्रैक्शंस बिल्कुल ठीक है, जिस बच्चे ने ऐसे भी छोड़ा बिल्कुल सही है, 100%. और ए लेवल्स में आप ऐसे ही करते हैं, डेसिमल्स में नहीं लिखना, मार्क कट जाएगा. इसकी रीजन है, मैं कभी बताऊंगा, बट फ्रैक्शन में ठीक है. दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ, बिकॉज व्हाई? नाउ द एटम्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, राइट, किस 2 into 1/2 इज 1. तो 1/2 को आप एंटर कर लें. हाइड्रोजन किधर है? ये हाइड्रोजन किधर है? ये है ना. तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 मैंने इधर इंसर्ट किया. दिस इज एक्चुअली ए बैलेंस्ड इक्वेशन. जस्ट गिव मी अ सेकंड अदीना. दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट. अब चूंकि ओ लेवल्स वाले कहते हैं यार फ्रैक्शन नहीं पसंद, फ्रैक्शन नहीं पसंद, तो ठीक है, इस 2 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें. सो 2 सोडियम्स प्लस 2 HCl gives you 2 NaCl plus H2. ये भी बैलेंस्ड है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई की. दिस इज द बैलेंस इक्वेशन. गिव मी अ सेकंड, आई टीच यू द बेटर वर्जन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं कि बैलेंसिंग की लॉजिक कैसे बनी. इसके बाद मैं आपको ज्यादा आसान तरीका बता रहा हूं. सांस ले ले एवरीबॉडी. ओके, जस्ट लाइक दैट, लेट्स सपोज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव यू लाइक योर what is it going to give me? The magnesium is going to displace the hydrogen, H2 बनेगा, और magnesium and Cl, so Mg has a charge of 2 plus Cl has a charge of 1 minus, cross multiply you get MgCl2. बैलेंस करें जी, लिखें सारे आइटम्स. मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन. आप जब पीएचडी करते हैं ना, तो आपके पास और कोई तरीका नहीं होता. दिस इज द सेफेस्ट वे टू बैलेंस आउट स्टफ. पीएचडी लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में आपको बैलेंसिंग ऐसे सिखाती है, लेकिन मैं इससे आसान तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि आपके कोर्स में है ही 4-5 रिएक्शंस. ओके, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? एक. हाइड्रोजन कितने हैं? एक. लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन कितना है? एक. राइट पे देखिए मैग्नीशियम है एक, हाइड्रोजन है कितने? 2. क्लोरीन है कितने? 2. अच्छा जी, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है. अब अगर मैं वैसे सोचें, इसको मैं 1 बनाऊंगा, इसको भी मैं 1 बनाऊंगा, इसको तो चलिए मैं 1 बना लूंगा बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1/2. इसको जब मैं 1 बनाऊंगा, इफ आई मेक क्लोरीन इनटू 1, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट माई मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ फिर ये इफेक्ट होगा. फिर तो बजाय ये कि मैं इन 2 के साथ खेलूं, व्हाई नॉट कन्वर्ट दिस 1 into 2? Atoms on the left and right hand side should be equal. This is 1. Left hand side पे हाइड्रोजन कितने? एक, और राइट पे 2 हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करूं? 2 से. You get 2.
क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, यू गेट 2, तो इस 2 को इंसर्ट करें, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक ही जगह में, जस्ट इंसर्ट द 2, दैट्स बैलेंस्ड नाउ. So now atoms on the left and right hand side are balanced. This is the more methodical way. मैं इसे आसान तरीका बताऊंगा. Just bear with me. Just bear with me. ठीक है? तो that was the concept of balance. अब मैं पहले लॉजिक बताऊं. अब असल में what happens is यूनिवर्स में क्या होता है. अब हम चूंकि इंसान हैं, humans are not that smart. Humans cannot write the balance equation off the top of their head. क्या मैं off the top of my head कह सकता था कि 2 sodiums react with 2 hydrochloric acid to give you 2 NaCl plus 1 hydrogen? नहीं कह सकता था. तो humans पहले क्या करते हैं? Humans पहले equation लिखते हैं, सोडियम reacts with hydrochloric acid, तो सोडियम क्लोराइड बनना है और फिर हाइड्रोजन गैस बने. अब जी अब बैलेंस कर लें, तो जब मैं बैलेंस करूंगा तो ठीक है, 2 इधर आएगा, 2 इधर आएगा और 2 इधर आएगा और ये 1 है. अब जी बैलेंस हो गया. दिस इज व्हाट ह्यूमंस डू. डू यू नो व्हाट द यूनिवर्स does? यूनिवर्स एग्जैक्टली ये रिएक्शन कर लेता है. तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्स एंड ह्यूमंस. Humans, we have done this in ionic equation. जी बताया था मैंने थोड़ा सा ये इसकी. So what happens is, मैंने आपको कहा था एसिड बेस में थोड़ा ज्यादा बताऊंगा. What happens is when the reaction takes place in the universe, वो ऐसे नहीं होता कि एक सोडियम पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनाते हैं और बाद में ये 2 हो जाते हैं, फिर ये 2 हो जाते हैं, ये 2 हो जाते हैं, ये 1 हो जाते हैं. नो 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 नो. यूनिवर्स डायरेक्टली ये रिएक्शन करता है. 2 सोडियम्स रिएक्ट विद 2 HCl to give you 2 NaCl and 1 hydrogen. That's how the reaction takes place. हम क्या करते हैं? हम पहले इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा यूनिवर्स में क्या हुआ होगा, बैलेंस कर लो इसको, तो हम बैलेंस करते हैं. दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग. अब मैं आपको इसके इससे आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि इसमें बच्चे कहते हैं पहले लेफ्ट को करें तो फिर राइट को करें, इधर आपने पहले राइट किया, इधर आपने पहले लेफ्ट किया. सो दिस इज जस्ट अ वेरी इजी वे टू बैलेंस इट, एंड लेट मी शो यू दैट इजी वे. उसके लिए आपकी आयोनिक बॉन्डिंग मेरे से आपने पढ़नी होनी है, अगर नहीं भी पढ़ी तो अभी देख लें. सोडियम प्लस HCl gives me what? Sodium is going to displace hydrogen, H2 बनेगा, plus NaCl. NaCl क्यों बनेगा? Na has a charge of 1 plus, Cl has a charge of 1 minus, so you cross multiply, बल्कि you don't cross multiply, 1 plus के लिए 1 minus काफी है, तो NaCl बना और हाइड्रोजन गैस बना. Now अगर आप देखें, एक सोडियम आयन के लिए कितने क्लोराइड आयंस चाहिए? एक सोडियम के लिए 1 HCl चाहिए होगा. For 1 sodium 1 HCl is required, क्योंकि एक सोडियम आयन के लिए 1 क्लोराइड आयन रिक्वायर्ड. ये 3 ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए. These 3 are automatically balanced. अब ये फर्दर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. जस्ट लेट मी प्रैक्टिस. सर ये समझ नहीं आया, सबर कर लें आमना, सबर कर लें, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, नहीं आया समझ. द नेक्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बैलेंस द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स एंड द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस आउट हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन को देखिए, यू हैव 1 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यू हैव 2 हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड. 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 की इक्वल है, x इज इक्वल टू 1/2 इधर इंसर्ट करें. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. अब एग्जांपल से क्लियर होगी बात. मैग्नीशियम प्लस HCl गिव्स मी व्हाट? मैग्नीशियम प्लस HCl गिव मी हाइड्रोजन. और क्या बनेगा? मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज है? मैग्नीशियम मेक्स एन आयन ऑफ 2 प्लस, क्लोरीन मेक्स एन आयन ऑफ 1 माइनस विच इज द क्लोराइड आयन. बताएं जी, एक Mg2 प्लस के लिए कितने Cl माइनस चाहिए? अच्छा वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके MgCl2 इधर तो मैंने लिख लिया, लेकिन मुझे बताएं एक मैग्नीशियम 2 प्लस के लिए कितने क्लोराइड आयंस चाहिए? एक मैग्नीशियम 2 प्लस के लिए कितने? एक 2 प्लस. द चार्जेस जिन्होंने मेरे से पहले नहीं पढ़ा बस इतना याद रखें, 2 प्लस के लिए कितने माइनस चाहिए होंगे? उसकी इक्वल. तो 2 प्लस के लिए 2 माइनस चाहिए, तो एक Mg2 प्लस के लिए कितने Cl माइनस चाहिए होते हैं? 2. Insert the 2 here. Automatically these 3 are balanced. The second step is balance out the hydrogen. चेक करें, 2 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट, 2 हाइड्रोजन ऑन द राइट. That's the balanced equation. अब आके देखिएगा, ये मैं इसलिए बार बार ये लिख रहा था. अब देखिएगा जरा, अब इन सारे इक्वेशंस को देखें. लिथियम प्लस, अब ये आपने मेरे साथ साथ करना है, तो बस अब प्रैक्टिस चाहिए. लिथियम प्लस H2SO4 गिव्स मी व्हाट? द लिथियम इज गोइंग टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन, H2 बनेगा. और क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? और ये चार्ज क्या बनेगा आप लिख लें इधर. लिथियम मेक्स अ 1 प्लस आयन. सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होगा? सल्फेट हैज a 2 माइनस चार्ज. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिख लें, Li2SO4. अब मुझे जरा बताएं, एक लिथियम 1 प्लस के लिए एक सल्फेट आयन चाहिए. एक सल्फेट आयन हैज अ 2 माइनस चार्ज, लिथियम हैज अ 1 प्लस चार्ज. 2 माइनस के लिए कितने प्लसेस होने चाहिए? 2 प्लसेस होने चाहिए.
2 माइनस के लिए कितने प्लसेस होने चाहिए? 2 प्लसेस होने चाहिए. सो फॉर 1 सल्फेट 2 लिथियम आयंस आर रिक्वायर्ड. तो 2 इधर इंसर्ट करें, ऑटोमेटिकली दीज 3 आर बैलेंस्ड. नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस द हाइड्रोजन. 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड. शमाल जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन. मैं बार बार प्रैक्टिस ही कर रहा हूं. अब देखिएगा. एक कैल्शियम 2 प्लस आयन है, एक सल्फेट है. व्हाट इज द फॉर्मूला? CaSO4 और हाइड्रोजन गैस. बताएं जी, कैल्शियम 2 प्लस और एक 2 माइनस. 2 प्लस के लिए कितने माइनस चाहिए? 2 माइनस. तो ये भी एक चाहिए, ये भी एक चाहिए. एक है, कुछ भी मैंने नहीं लिखना, सिर्फ हाइड्रोजन को देके. H2 इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है. दैट्स बैलेंस्ड. ये ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है. सर इधर देखें, फॉर 1 बेरियम 2 प्लस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बैलेंसिंग. अब आप देखें, ये आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट बैलेंसिंग आउट ऑफ दिस रिएक्शन. इस पूरे रिएक्शन में यही सबसे मुश्किल बैलेंसिंग हो सकती है. बताएं जी, आप बैलेंस करें इसको. शाबाश, बैलेंस करें. बेरियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, फॉस्फेट के ऊपर 3 माइनस चार्ज है. इस 2 प्लस इक्वल टू 3 माइनस? नो. क्या करेंगे? दोनों का कॉमन, ये हमने आयोनिक बॉन्डिंग में पढ़ा था. 2 प्लस और 3 माइनस का एलसीएम लेना 6 आता है. तो 2 प्लस को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? 3 से. और 3 माइनस को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? 2 से. और जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा, सिंपल सी बात है, अगर आप चार्जेस बैलेंस करना चाहिए, इस 3 माइनस, इस 3 को इधर लिखें और इस 2 को इधर लिखें. आई कैंट गिव यू द लॉजिक अगेन. इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक, मैंने एलसीएम वाली लॉजिक आयोनिक बॉन्डिंग में पढ़ाई थी, जिनसे भूला भी हुआ है. ये 3 है, ये इधर लिख लें, ये 2 है, ये इधर लिखें. अब चार्जेस बैलेंस है, हमने चार्जेस बैलेंस करें. 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस, 2 multiplied by 3 6 minus, charges are balanced. Insert the 3 here, insert the 2 here, automatically these 3 are balanced. Third step, balance the hydrogens. 2 multiplied by 3, you have 6 hydrogens on the left, you only have 2. तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए? x is equal to 3. 6/2 3. और करें, और सवाल कर लेते हैं. ये आज वाली बैलेंसिंग अगर सीखे, बाकी सारी बैलेंसिंग ऐसी है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज आना है. लेट्स सपोज यू हैव पोटेशियम रिएक्ट्स विद H3PO4. मुझे बैलेंस्ड इक्वेशन बताएं. पहले इक्वेशन लिख लें. हम ह्यूमंस क्या है, हम थोड़े कमजोर हैं, हम नेचर की तरह नहीं है. हम पहले इक्वेशन लिखते फिर बैलेंस करते. तो इक्वेशन लिख लें. पोटेशियम इज गोना डिस्प्लेस हाइड्रोजन, H2 बनेगा. और पोटेशियम कौन सा आयन बनाता है? 1 प्लस. फॉस्फेट कौन सा आयन बनाता है? फॉस्फेट हैज एन आयन चार्ज ऑफ 3 माइनस. बताएं जी, 1 प्लस के लिए 3 माइनस काफी है? वैसे पहले फॉर्मूला लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लाई से फॉर्मूला लिख लें, K3PO4. क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना, K3PO4. लेकिन असल कॉन्सेप्ट क्या है? फॉस्फेट आयन हैज ए 3 माइनस चार्ज. हाउ मेनी प्लसेस शुड बी देयर? 3 प्लसेस. इधर तो सिर्फ 1 प्लस है, तो सिर्फ 1 प्लस है. इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 प्लस आए? 3 से. इंसर्ट द 3 हियर, ऑटोमेटिकली दीज 3 आर बैलेंस्ड. बैलेंस द हाइड्रोजन नेक्स्ट. 3 हाइड्रोजन है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 2 है राइट हैंड साइड पे. तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आए? x इज इक्वल टू 3/2. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. लिख लें 3/2. नहीं अच्छा लग रहा है एग्जामिनर को लेवल को, अब ये 2 खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें. आप अपने दोस्तों को जब ये देंगे ना, वो पागल हो जाएंगे. 3 2 करके. हमने कितनी सिंपल सी बात रखी है. हम दिस इज अ मेथड दैट आई केम अप विद, और दिस इज कॉल्ड एज लाइक योर बैलेंसिंग थ्रू ionic compounds, by using ionic compounds, by using charges. सर why 3/2? 3/2 इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 3 हाइड्रोजन है, राइट पे 2 है. 2 को मैंने 3 की इक्वल करना है. 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए? x इज इक्वल टू 3. इधर लेफ्ट पे मल्टीप्लाई होगा 2, तो राइट पे डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स. तो 3/2. तो अब 2 को खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 6k प्लस 2H3PO4 प्लस गिव्स यू 2k3PO4 प्लस 3 हाइड्रोजन. कितनी मुश्किल बैलेंसिंग थी. जो बच्चे वो करते हैं वो भी ठीक है, पहले इधर देखो, फिर इधर देखो, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर लंबा काम है. क्यों लंबा काम करें हम? छोटा छोटा सिंपल. अच्छा जी, लेट्स डू अनदर. ये अब आप कर लें प्लीज. Aluminum plus HNO3. Can somebody quickly write me the balanced equation? सर कैन वी राइट 3/2? बिल्कुल आप लिख सकते हैं. आपके ओ लेवल के टीचर आपको मार्क नहीं देंगे, पेपर कैम्ब्रिज वाले मार्क दे देंगे. आपके ओ लेवल की मार्किंग स्कीम में भी फुल इक्वेशन, मतलब फ्रैक्शंस में नहीं लिखा होता, कैम्ब्रिज वाले आपको मार्क्स दे देंगे इसके बारे में. बट इफ यू आर विलिंग, इफ यू वांट टू स्कोर अ डिस्टिंक्शन, ज़्यादा बेहतर है. अब कैम्ब्रिज की बात ही मानिए, बस सही है. बाय 2 ना लिखे, पूरी इक्वेशन को आखिर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें. करें जी, कोई करें. पहले इक्वेशन लिखे.
अच्छा मजे की बात है, ये क्यों इतना अच्छा मेथड है? ये अच्छा मेथड इसलिए है क्योंकि देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप जहन में ना रखें, आप सिर्फ कहें कि ओके एक फॉस्फेट आयन के लिए 3 पोटेशियम आयंस चाहिए, तो ऑटोमेटिकली क्या फॉर्मूला बन जाता है, K3PO4, K3PO4। तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट अ ट्रिक। असल कॉन्सेप्ट चार्जेस का होता है, जो मैंने आयोनिक बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया था। अच्छा जी बताएं, तो अगर आप चार्जेस के बेस पे जाते हैं तो ये भी आ जाता है और बैलेंस भी हो जाता है। सर बताएं, कैन एनीबडी डू दिस? मैं करूं। एल्यूमिनियम विल मेक A3+ आयन, नाइट्रेट हैज A1- चार्ज, NO3 हैज a 1- चार्ज। अच्छा जी, 3+ और 1- इक्वल है? नो। कैसे इक्वल करें इसको? कैसे इक्वल करें इसको? इस 1 को उठा के इधर ले आए, इस 3 को उठा के इधर ले आए। जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा बस उल्टा उल्टा काम कर लो, जो रट्टा मारना चाहते हैं कर लें उल्टा उल्टा काम। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए? 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आ जाए? 3 से। इंसर्ट इधर 1 है ना, तो जब कुछ भी नहीं होता उसका मतलब 1 ही होता है। और 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई कर इंसर्ट द 3 हियर, दीज आर ऑटोमेटिकली बैलेंस। फॉर्मूला क्या बनेगा? एक एल्यूमिनियम के लिए 3 नाइट्रेट्स चाहिए, तो NO3 होल थ्राइस, NO3 होल थ्राइस, NO3 होल थ्राइस आपने नहीं लिखा मुस्तफ़ा सिकंदर साहब, ये आपने क्या बैलेंसिंग की है? NO3 होल थ्राइस, यू फॉरगॉटन इट। बाकी शायद सही हो। 3 हाइड्रोजन लेफ्ट पे हैं, राइट पे 2 हैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 आए? x is equal to 3/2, तो 3/2 से मल्टीप्लाई, दैट्स द बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए पहला स्टेप क्या है, इन 3 को बैलेंस करना है और वो इससे बैलेंस हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या है, लेफ्ट के हाइड्रोजन्स को देके और राइट वाले जो हाइड्रोजन है उसको इसकी इक्वल बना लें। तो राइट लेफ्ट में 3 है, राइट में 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 है? x is equal to 3/2। अब अगर आपने फुल इक्वेशन लिखनी है तो मतलब आपने फ्रैक्शन हटाना है, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि ये 2 खत्म हो जाए। तो आप वो भी कर सकते हैं जो आपके ओ लेवल्स में करते हैं ज़्यादातर। लास्ट क्वेश्चन, चलें जी। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट बैलेंसिंग इस पूरे चैप्टर की, और वो मैं लिख लेता हूँ, मतलब इस पूरे मेटल प्लस एसिड की लिख लेता हूँ। 2 मैं लिख लेता हूँ, चलें। एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इक्वेशन भी लिखे और बैलेंस भी करें प्लीज इसको। एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और लाइक कैल्शियम प्लस फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा जी, आपका होमवर्क फिर यही होगा, आपने दोबारा ये लिखने हैं, ये सारे इक्वेशन आपने बैलेंस करके दोबारा लिखने हैं। अच्छा एक मैं इससे भी सबसे मुश्किल मैं लिख रहा हूँ, चौथा सबसे मुश्किल है, ये कोई करके देखा है। सिल्वर इज 1, बताएं जी। A B C चुप चुप के सारे कर लें, खामोशी से करके चैट में बता दें। और जिन्होंने कर लिया है वो बेशक माइक भी इस्तेमाल करें, नहीं माइक ना करें इस्तेमाल, क्योंकि फिर बाकी डिस्टर्ब हो गए। चैट में लिख लें, मैं साथ साथ करता जाऊं। सेकेंड स्टेप हमारा था ओनली चेक द हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड। हाइड्रोजन को राइट पे एक नजर मारनी है। बैलेंस करने के बाद 3 चीजें ऑटोमेटिकली, ये और ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। राइट साइड भी थोड़ी नजर दौड़ानी है, बट दैट्स इट। बैलेंसिंग की कौन सर बैलेंसिंग मुश्किल है, नहीं होती, ये है वो है, नहीं आसान है बैलेंसिंग। हाय करूं मैं? हाय ना आजकल टिकटॉक मैं नहीं इस्तेमाल करता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बीमारी से तो मैं दूर ही हूँ। इतने दोस्त मेरे आजकल टिकटॉक पे लग गए सारे। नॉट येट, डिडंट सॉल्व, डोंट सॉल्व येट। अच्छा मैं ए तो कर लूँ, ए तो होना चाहिए सबका। अब ए में तो 2 सेकंड भी नहीं लगने। एल्यूमिनियम है, मैं स्लो में करता हूँ, आई सॉल्व इट इन स्लो मो। एल्यूमिनियम हैज अ चार्ज ऑफ 3+, Cl हैज अ चार्ज ऑफ 1-। तो एक एल्यूमिनियम 3+ के लिए कितने Cl चाहिए? 3 Cl चाहिए। सो AlCl3 इज द फॉर्मूला, और इस 3 को इधर इंसर्ट करें और जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस बनेगा। और हाइड्रोजन, अच्छा पहले वैसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना, एल्यूमिनियम इज गोना डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन, H2 बनेगा, और फिर आप फॉर्मूलेज लिख लें। तो H2 पहले लिख लें, देन यू आर गोना गेट एल्यूमिनियम एज अ 3+ चार्ज, Cl एज अ 1- चार्ज। एक एल्यूमिनियम के लिए कितने Cl चाहिए? 3 Cl चाहिए। तो 3 को इधर इंसर्ट कर लें और एल्यूमिनियम AlCl3 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AlCl3 बन गया, राइट। नाउ हाइड्रोजन को एक नज़र मारे, 3 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट, 2 ऑन द राइट। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 की इक्वल आ जाए? x इज इक्वल टू 3/2। बाकी जिन बच्चों को शौक है उस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करें टू रिमूव दिस 2। दैट्स द फर्स्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकंड के ऊपर जा रहा हूं।
Aluminum is going to displace, ऐसे step by step जाए. Aluminum is going to displace hydrogen. It's gonna give you aluminum sulfate and hydrogen gas. अब aluminum sulfate का क्या formula है? Al has a charge of 3 plus, SO4 is 2 minus, cross multiply, you get what? Al2 SO4 whole thrice. That's the formula. अब लॉजिक से लड़ाएं तो एक 3 प्लस के लिए एक 2 माइनस पड़ा हुआ है, ये तो सेंस नहीं बनाता. सिंपली इधर 2 लगा ले, इधर 3 लगा, इस 2 को लेफ्ट पे लगा ले, इस 3 को इधर लगा, बिकॉज वी वांट टू बैलेंस द चार्जेस. 2 इंटू 3 6 प्लस, 3 इंटू 2 6 माइनस. असल में कॉन्सेप्ट एलसीएम का जो मैंने आयोनिक बॉन्डिंग में पढ़ाया था. अच्छा जी, 2 आपने अपने से लगाया, 3 आपने अपने से लगाया, तो 2 इधर इंसर्ट करें, 3 इधर इंसर्ट करें, ऑटोमेटिकली ये 3 बैलेंस्ड हैं. व्हाट डू यू बैलेंस नेक्स्ट? हाइड्रोजन. कितने हाइड्रोजन हैं लेफ्ट पे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए? 3 x इज इक्वल टू 3. Sir, if we don't multiply the whole equation by denominator in there, will it be acceptable in CIs? 20 दफ़ा तो कह दिया yes 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 yes, सही है, लेकिन बेहतर है कर लेना, तो क्या क्या जाता है आपका. लेकिन acceptable, 100% acceptable, 100%. ना भी करें. अब O levels के आपकी टीचर्स जो होते हैं, उन्होंने असल में A levels नहीं किया होता ज़्यादातर ने खुद, तो उनको मार्किंग स्कीम और ग्रेडिंग का नहीं पता होता, सॉरी टू से, तो वो कहते हैं ये गलत है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. नहीं जी, बिल्कुल फ्रैक्शन में हो सकता है, डेसिमल्स में नहीं हो सकता. डेसिमल्स बिल्कुल आप ये लिखें 100% एक्सेप्टेबल, 1 बिलियन% पूरे मार्क्स देगा आपको सीआई एग्जामिनर. ओके, अच्छा जी, करें जी. तीसरा सॉल्व करें. कैल्शियम इज गोना डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो H2 गैस बनेगा. बाकी पीछे क्या रह गया? कैल्शियम 2 प्लस एंड द फॉस्फेट आयन. 2 प्लस और 3 माइनस इक्वल नहीं है. अगर नहीं इक्वल समझ नहीं आ रही, 3 को इधर लिख लिया और 2 को इधर लिख लिया, जस्ट टू मेक द चार्जेस इक्वल, राइट. 6 प्लस और 6 माइनस, तो 3 इधर आपने अपने से इंसर्ट किए, तो उधर भी इंसर्ट करें. इंसर्ट द 2 राइट हियर, ऑटोमेट एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई फॉर द फॉर्मूला, सो यू गेट CA3PO4 होल ट्वाइस व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन असल में ट्रिक है, असल में कॉन्सेप्ट क्या है? 3 कैल्शियम आयंस और 2 फॉस्फेट आयंस रिक्वायर्ड है. 3 कैल्शियम आयंस और 2 फॉस्फेट आयन रिक्वायर्ड है. अब हाइड्रोजन को एक नज़र मारें आखिर में. 2 इंटू 3 6 हाइड्रोजन्स और इधर सिर्फ 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए? x इज इक्वल टू 2 और 3, 6 over 2, दैट्स 3. असल में जो मैं आपको इक्वेशंस करा रहा हूँ, ये बहुत रेयर है कि ये टेस्ट हो जाए इनकी बैलेंसिंग, बिकॉज दिस इज वेरी डिफिकल्ट बैलेंसिंग. ये ए लेवल्स में ऐसी बैलेंसिंग टेस्ट होती है, लेकिन कितना आसान करके आपको पता लग रहा है. आमना इज सेइंग यू आर वर्थ कॉलिंग अ टीचर. ओके आमना. अच्छा, तीसरा बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल तीसरा वाला है. Ag will have a 1 plus charge, PO4 will have a 3 minus charge. तो एक 1 प्लस के लिए 3 माइनस है, तो एक 3 माइनस के लिए कितने 1 प्लसेस चाहिए? 3. तो इधर 3 आपने इंसर्ट करना है, और व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू आर गोना गेट Ag3PO4 और हाइड्रोजन गैस बनेगा. तो ये सबसे मुश्किल है. इधर 3 हाइड्रोजन हैं, इधर 2 हैं, तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 है? x इज इक्वल टू 3 over 2, और फिर बाद में आप पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें. सही है एवरीबॉडी? ठीक हो गया. हमारे से ही नो, हमाद को मेरे से बड़ा मसला होता है. हमारे से नो, नो सर, नो, आई सेड नो, सो नो. अदीना सिंह यस ले, यस अदीना, इट्स करेक्ट. मतलब इसमें क्या गलती है? इजी माँ आई सेइंग इजी. हमाद के साथ सिर्फ लांझा. हमाद माइक खोलें, आज तो मैं और आप लड़ेंगे. क्यों मसला है? व्हाई यू सेइंग नो? मेरा बस चले, मैं मैकबुक से ना लड़ने आ जाऊं. हमाद बताएं क्यों नो? व्हाई नो? यू नो आई डोंट लाइक दिस नो और यस आंसर. How did Ag replace the hydrogen? You dumbos, only Hamad was able to catch up. Silver is less reactive than hydrogen, therefore this reaction is never going to take place. Why? Because you know that this is a displacement reaction and it only takes place because the metal is more reactive than hydrogen. Silver is not more reactive than hydrogen. How will silver displace this hydrogen? Thank you Hamad Saab. Hamad Saab 1000 रुपए इनाम हो गया. Please message in the group chat. 1000 रुपए हमारे साहब के हो गए आज. बाकी सारे यस यस सर, बहुत आसान है, बहुत आसान. भाई ये तो देखो, कैन सिल्वर रिप्लेस द हाइड्रोजन और नो? और बनो ओवर कॉन्फिडेंट, सारे ओवर कॉन्फिडेंट. ओके दैट्स इट. एक और रिएक्शन करें. चले एक और रिएक्शन भी करते हैं. लास्ट एक और. व्हेनेवर, अच्छा ये रिएक्शन हो गया, मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. और इसके पीछे बहुत थ्योरी पढ़ ली है, बहुत सब कुछ पढ़ लिया, बहुत एग्जांपल्स भी करनी है. प्लीज ये जितने एग्जांपल्स मैंने किए दोबारा एक दफा हाथ से करने. डोंट ट्रस्ट मी ब्लाइंडली, बिकॉज इफ यू ट्रस्ट मी ब्लाइंडली आई विल कंफ्यूज यू गाइज. आई विल मेक श्योर टू टेस्ट यू ऑन एवरी मोमेंट.
आज तक तुम लोगों को मेरा पता नहीं चला मैंने कितनी दफ़ा ऐसी हरकतें की हैं क्लास में, हर दफ़ा करता हूँ, लेकिन आज तक बस सारे कहते ये हमारा 1000 रुपये आपका इनाम हो गया, प्लीज़ मैसेज इन द ग्रुप चैट, बाद में डिटेल्स मुझे DM करें और ग्रुप चैट में मैसेज करें। अच्छा जी, सेकेंड रिएक्शन, Whenever an acid, अच्छा इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्यों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं? वैसे मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं इसको। Why is this called डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? Why? मुझे तो नहीं पता इसको क्यों डिस्प्लेस, बिकॉज द मेटल डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन इन द एसिड, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर displacement reaction are those reactions in which the more reactive metal, in which the metal which is more reactive than hydrogen displaces the hydrogen in the acid. Metal displaces hydrogen, metal is more reactive than hydrogen and it displaces it. सारे सही है, सारे ठीक है। Okay. The second reaction is whenever an acid reacts with a base, it's going to give you salt, but not hydrogen. It's going to give you water. क्यों, कैसे, आ जाए इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। अच्छा, बेस क्या होता है? कौन कौन से बेसिस होते हैं आपके पास? वी नो बेस इज बेसिकली एनी सब्सटेंस व्हिच गिव्स द हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर और इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्ट। लेकिन बेस होते क्या है? कौन से कंपाउंड्स बेसिस होते हैं? कौन से कंपाउंड्स बेस? कोवेलेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बेसिस होते हैं। वाह 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 वाह, हाय मैं मर जावा या अल्लाह उठा ले मुझे नहीं, इनको उठाने जो कर, सॉरी नो यस मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। पहली क्लास में तुम 50 दफा कह लिया है कि मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ बेसिस, और मेटल कार्बोनेट्स भी होते हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, हम इसमें आज की क्लास के लिए हम सिर्फ मेटल ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स फिलहाल पढ़ेंगे। 8 मिनट रह गए, 8 मिनट में मुकाएंगे इंशाल्लाह। ओके, so an acid, let's suppose hydrochloric acid, reacts with a base, let's suppose sodium hydroxide. हम फिलहाल metal hydroxide की बात करें। So sodium hydroxide, it will give you salt and water. Why will it give you salt and water? Because the hydrogen in the acid and the hydroxide in the base are going to combine together to give you H2O. पीछे क्या रह जाएगा? You have the chloride ion and the sodium ion, and they are going to react together to form Na के ऊपर 1 प्लस है, Cl के ऊपर 1 माइनस है। They are going to react together to form NaCl. And that is the reason why this is called as a neutralization reaction, because an acid neutralizes the base or a base neutralizes the acid and salt and water is formed. H and OH react together to form water. Yeah, neutralization reactions are those reactions in which an acid and base neutralize each other to form salt and water. ये बहुत common definition है। इसको neutralization reaction क्यों कहते हैं? Those reaction in which an acid and base न्यूट्रलाइज ईच अदर। मेटल कार्बोनेट से पढ़ाऊंगा तो पढ़ा दूंगा। मेटल कार्बोनेट्स भी एग्जांपल्स ऑफ बेसिस होते हैं, वो थोड़ी वीक बेसिस होते हैं। इन विच एन एसिड एंड इन विच न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म क्या क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। दैट्स इट। That's the definition of neutralization reaction. अच्छा, इनको हम बैलेंस कैसे करेंगे? पहले कुछ एग्जांपल्स लिख लें 2-3, फिर बैलेंसिंग। मैं बस सबसे मुश्किल बैलेंसिंग मैं कराऊंगा, बाकी आप जाने काम जाने। अच्छा जी, कराएं जी। H2SO। अच्छा, मैं पहले बेस लिख रहा हूँ बिकॉज इट मेक्स ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, तो पहले मैं बेस लिख रहा हूँ। तो बेस लेट सपोज लिथियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा और आपके पास H2SO4 है। सबसे पहले क्या होगा? द हाइड्रोक्साइड आयन एंड द हाइड्रोजन आयंस आर गोना कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2। अपनी हाईलाइट किया करें। पीछे क्या रह गया? लिथियम रह गया, सल्फेट रह गया। जनाब वाले लिथियम हैज अ चार्ज ऑफ 1 प्लस, सल्फेट हैज अ चार्ज ऑफ SO4 हैज अ चार्ज ऑफ 2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई Li2SO4। सर मैं बैलेंसिंग फिलहाल नहीं कर रहा, बैलेंसिंग मैं एंड में एक साथ करता हूँ, लास्ट 2-3 मिनट्स। Calcium reacts with hydroxide, calcium reacts with hydroxide कह रहा हूँ। Calcium hydroxide reacts with like your nitric acid. क्या बनेगा? The hydroxide and the hydrogen are going to combine together to form H2O. पीछे क्या रह गया? Calcium रह गया और nitrate रह गया। Calcium has a charge of 2 plus, NO3 has a charge of 1 minus, cross multiply, you get CaNO3 whole twice.
बैलेंस नहीं कर रहा माइंड यू, बैलेंस कर रहा हूँ, एंड में करूँगा। अब जो बच्चे जिनको जल्दी होगी मुझे 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो वो बैलेंसिंग भूल जाएंगे, जो देंगे मुझे 5 मिनट तो उनको समझ आ जाएगी। ओके, लेट्स सपोज लाइक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लाइक H3PO4, क्या बनेगा? कितना मुश्किल है सर, डरने की कोई बात नहीं है। हाइड्रोक्साइड आयन को हाईलाइट करें, हाइड्रोजन को हाईलाइट करें, दे आर गना फॉर्म H2O। whenever a base reacts with an acid it forms water and salt। वाटर तो बन गया, अब सॉल्ट क्या है? ये एंड ये मैग्नीशियम और फॉस्फेट पीछे रह गया। मैग्नीशियम हैज अ चार्ज ऑफ 2+, फॉस्फेट हैज अ चार्ज ऑफ 3-। क्या बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई Mg3PO4 होल ट्वाइस। गुड स्टफ। इतना तो आप करें, बैलेंसिंग बताता हूं, बैलेंसिंग। अच्छा, एमी यूज द मोस्ट, चलो मोस्ट डिफिकल्ट लिख लेता हूं मैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड reacts with sulfuric acid to give you what? The hydroxide and the hydroxide of the base and the hydrogen in the acid are going to react together to form water, and what is left? पीछे क्या रह गया? Aluminum and sulfate। Aluminum has a charge of 3+, sulfate has a charge of 2-। क्या बना जी? Cross multiply Al2SO4 होल थ्राइस, दैट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा प्लीज एक बात याद रखें, मैं ग्रुप में एक पिक्चर भेजूंगा, बहुत ढेर सारी इक्वेशंस की, सबने अलग अलग वो सॉल्व करी। इधर मैं सारे नहीं लिख रहा, इधर मैं कुछ लिख रहा हूं क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लेन बैलेंसिंग। चलिए जी बैलेंसिंग की बात करते हैं, कैसे करें बैलेंस। अच्छा इसके 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका मैं एंड में बताऊंगा, पानी के साथ बैलेंस करना। हम अपने आयोनिक कंपाउंड्स के साथ बैलेंस करेंगे, इसको पानी के साथ भी आप बैलेंस कर सकते हैं, मैं बताता हूं। फर्स्ट स्टेप इज द सेम, बताएं जी। एक लिथियम आयन के लिए एक सल्फेट आयन होता है, एक 2- के लिए कितने 2+ चाहिए होते हैं? 1 2- के लिए कितने 2+ चाहिए होते हैं? एक 2- के लिए कितने 2+ चाहिए होते हैं? एक 2- बता ही दो कोई प्लीज, समझ टेल मी। एक 2- के लिए कितने 2 चाहिए होते हैं। सो यू ऐड अ 2 हियर, इंसर्ट द 2 हियर, all these 3 are automatically balanced। The next step is either balance the hydrogen or the oxygen। अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, या आप हाइड्रोजन को बैलेंस करें या आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें इन वाटर। पिछले में क्या था, हाइड्रोजन रह गया था तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे। अब इधर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस, कौन सा ज्यादा आसान लग रहा है? मुझे हाइड्रोजन ज्यादा आसान लग रहा है। 2 × 1 दोनों सेम है वैसे, 2 × 1 2 एंड 2 हेयर, तो टोटल 4 हाइड्रोजन है लेफ्ट पे। लेफ्ट पे 4 है, राइट पे कितने हैं? 2। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए? x = 4/2, दैट गिव्स मी 2। बैलेंस्ड। कितना आसान है बैलेंसिंग, मैंने आपको कहा था चीतिया हो जाएंगे आप सारे। ओके जी, इसको देखें। 1 कैल्शियम 2+ के लिए कितने नाइट्रेट आयंस? इसके लिए आपके चार्जेस बस स्ट्रांग होने चाहिए, जो आयोनिक बॉन्डिंग है, और आयोनिक बॉन्डिंग भी नहीं, क्या चार्जेस आने चाहिए। एक 2+ के लिए कितने माइनसेस चाहिए? एक माइनस के नहीं, 2 चाहिए होते हैं। सो इंसर्ट अ 2 हियर, इंसर्ट अ 2 हियर, ऑल दीज 3 आर ऑटोमेटिकली बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप इज आइदर बैलेंस द हाइड्रोजन और द ऑक्सीजन इन द वाटर। तो हाइड्रोजन को कर लेते हैं, ज्यादा मुझे आसान लग रहा है। 2 बल्कि चलिए इधर ऑक्सीजन को कर लें। 2 × 1 2 ऑक्सीजन एटम्स हियर एंड 2 × 3 6 ऑक्सीजन एटम्स हियर। तो 6 + 2 यू गेट 8। इधर 8 ओज हैं, तो राइट पे कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अच्छा 8 ओज हैं, एम आई करेक्ट? 6 + 2 हाँ 8। तो राइट पे कितने ओज होने चाहिए? 8 ओज होने चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए ऑक्सीजन के साथ थोड़ा सा मसला आ रहा है। 8 होने चाहिए, इधर प्रेजेंट कितने हैं? 6 ऑक्सीजन आर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो 1 को, और इधर अब 1 है, तो 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आए? क्योंकि 6 पहले से हैं और मुझे 8 चाहिए, तो 2 और चाहिए ना, और इधर है 1। तो इससे बेहतर है कि ऑक्सीजन को देखो, हाइड्रोजन को ही देख लें। इट्स बेटर टू जस्ट लुक एट हाइड्रोजन। अच्छा अगर ऑक्सीजन के साथ किसी ने करना हुआ तो देख लें। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 आए? x = 2। तो इधर 2 आएगा। अब ये 2 और 6 तो टोटल 8 हो गए। लेकिन बेहतर यही है कि हाइड्रोजन से करें, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जिनकी मैथ स्ट्रांग है वो दोनों से कर सकते हैं। अब देखिए 2 × 1 = 2 एंड 2 × 1 = 2। तो टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट पे कितने चाहिए? 4 चाहिए। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आए? x = 2। इंसर्ट द 2 हियर। ऑक्सीजन से जो करेंगे, फिर इधर भी ऑक्सीजन को देखिए, ये भी तो ऑक्सीजन है। एक और हम हाइड्रोजन से ही करते हैं, हाइड्रोजन से करें प्लीज। अच्छा जी, 2+ और 3- वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट,
मोस्ट डिफिकल्ट, इससे ज्यादा मुश्किल हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज दिस इज इससे ज्यादा डिस्टॉर्शन चार्ज में आ ही नहीं सकती, ये मैक्सिमम डिस्टॉर्शन है। क्या है, 2 प्लस इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस, क्या करें, एलसीएम ले लें, दोनों के अंदर 6 कॉमन आ रहे हैं, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए 3 से, और 3 को किससे करूं कि 6 आए 2 से। लेकिन बेहतर क्या है, अगर आपको नहीं पता तो इस 3 को इधर लिख लें और इस 2 को इधर लिख लें, तो 3 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ऑटोमेटिकली दीज 3 आर बैलेंस्ड। द नेक्स्ट स्टेप इज बैलेंस द हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड। देख लें जी, 2 into 1 is 2 multiplied by 3, so 3 multiplied by 2 6 हाइड्रोजन ये इधर बस थोड़ा केयरफुल अब होना है, एंड 2 multiplied by 3 is 6 हाइड्रोजन here, तो 6 plus 6 12 आ गए। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आए, x is equal to 12/2, that's 6, insert the 6 here। मतलब मजे की बात है, बच्चे कितना सोचते हैं, इसको इतना हो गया तो अब ये यूं हो गया, तो यूं हो गया, तो यूं हो गया, कुछ नहीं किया हमने, चार्जेस के साथ बैलेंसिंग की, खेल गए हम लोग। ओके, नेक्स्ट करें जी, कोई ये कर लें, दोनों का कॉमन 6 है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता इस 2 को उठा के इधर लिख लिया, इस 3 को उठा के इधर लिख लिया, क्योंकि ये हमने अपने आप से लिख लिया, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली दीज 3 आर बैलेंस्ड, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करें तो 3 multiplied by 1 is 3 multiplied by 2, so that's 6 hydrogens here, 3 multiplied by 2 that's 6 hydrogens। तो टोटल लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है, 12, राइट पे कितने हैं, 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 है, x is equal to 6। जिसने ऑक्सीजन के साथ करना था बिल्कुल कर सकते थे, ऑक्सीजन के साथ देख लें प्लीज, ऑक्सीजन के साथ 2 into 3 कितने आ गए, 6 ऑक्सीजन ये आ गए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और फिर 3 into 4 12, सो टोटल लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन है, 18 ऑक्सीजन है। राइट पे देखिए कितने हैं, 3 multiplied by 4 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेफ्ट पे 18 है, राइट पे 12 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि कितने आए, कितने और चाहिए मुझे, 6, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए, 6 से, तो इंसर्ट द 6, तो दोनों से हो सकते हैं। सर मैं बार बार ये पूछ रही हूँ आपको, ये ट्रिक्स कौन बताता था, कोई नहीं बताता था आमना, दिस जस्ट कम्स विद एक्सपीरियंस, this just comes with experience and teaching and reading a lot and just figuring out stuff. It comes with experience। अच्छा जी, अब इसका जो हायर जो आपकी पीएचडी यूनिवर्सिटियों में जो तरीका इस्तेमाल होता है वो भी मैं कर देता हूँ। वैसे तो पीएचडी यूनिवर्सिटी लेवल पे सिर्फ वो पहला तरीका इनिशियली जो मैंने आपको सिखाया था वो इस्तेमाल होता है, लेकिन इट्स गुड टू नो मल्टीपल वेज। बस ये सिर्फ एक कान से सुन ले दूसरे कान से निकालने, हमने करना तो यही है। किसी को शौक पड़े कि पानी के साथ करना है, सर मैंने पानी के साथ करना है, तो पानी के साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। It all is because of these charges that you can balance stuff out. बल्कि ये नहीं, पानी के साथ करते हैं, लाइक लास्ट, बस दिस इज लास्ट गाइस, बस लास्ट क्या बनेगा, CaCl2 बनेगा और पानी बनेगा। अब इसको जरा बैलेंस करते, बजाय कि मैं आयोनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करूं, पानी को इस्तेमाल करें। पानी कैसे बनता है, 1H प्लस रिएक्ट्स विद 1 हाइड्रोक्साइड आयन टू गिव यू H2O। अच्छा जी, एक H प्लस अगर एक हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके H2O देगा, तो अगर 2 H प्लस होंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे तो कितने H2Os आएंगे, एनीबॉडी? 2 H प्लस होंगे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन होंगे तो कितने H2Os आएंगे, 2। 3 H प्लस होंगे, 3 हाइड्रोक्साइड आयन्स होंगे तो कितने H2O आएंगे, 3। 2 हाइड्रोक्साइड आयन होंगे तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन के लिए कितने हाइड्रोजन आयंस चाहिए, 2 हाइड्रोक्साइड आयंस के लिए कितने हाइड्रोजन आयंस चाहिए, बताए कोई बताए 2 हाइड्रोक्साइड आयंस के लिए कितने हाइड्रोजन आयंस चाहिए, 2। और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस और 2 हाइड्रोजन आयंस मिलके कितने पानी बनाएंगे, कितने पानी बनाएंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आयन और 2 हाइड्रोजन आयंस बना के कितने पानी बनाएंगे, 2। सो 1 2 3, these 3 are automatically balanced। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है। हेलो क्या हो गया है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन और 2 हाइड्रोजन आयन मिला के 2 पानी बनाएंगे। अभी प्रूफ किया हाजरा, H प्लस प्लस OH माइनस H2O, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स यू H2O।
So 2H plus and 2OH minus gives you 2H2O. 3H plus 3OH minus gives you 3H2O. इसलिए अगर 2 हाइड्रोक्साइड होंगे तो कितने हाइड्रोजन आइंस चाहिए? 2. इधर 1 है तो 2 लिख लिया इधर. और कितने पानी बनेंगे? 2. और ये बस सिर्फ फॉर्मूला लिखना है. लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू रेकमेंड दिस, क्योंकि जब हम मेटल ऑक्साइड्स पढ़ेंगे फिर थोड़े कंफ्यूज हो जाए. तो हम अपने आयोनिक कंपाउंड के साथ भी करेंगे. व्हाट डू यू मीन इज दिस नेसेसरी? व्हाट इज नेसेसरी? एक और एग्जांपल दूं आपको, एक और एग्जांपल दूं. लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 gives me lithium sulfate. अब ये फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए, Li2SO4 प्लस H2O जो बनाना है ना, लिथियम के ऊपर 1 प्लस SO4 के ऊपर 2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई Li2SO4. जिन्होंने पानी के साथ बैलेंस करना है सिर्फ इसीलिए, नो यू डोंट नीड टू सॉल्व इट विद वाटर. आपने पिछले अपनी आयोनिक कंपाउंड्स के साथ ही करना है, वो मैं रेकमेंड करूं. सिर्फ सिखा रहा हूं, ये भी एक तरीका है जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है हायर लेवल्स में. क्या एक हाइड्रोक्साइड आयन के लिए कितने हाइड्रोजन आइंस होने चाहिए? एक. इधर तो 2 है, तो 2 हाइड्रोजन आइंस के लिए कितने हाइड्रोक्साइड आइंस चाहिए? 2 हाइड्रोजन आइंस के लिए कितने हाइड्रोक्साइड आइंस चाहिए? 2 हाइड्रोजन आइंस के लिए कितने हाइड्रोक्साइड आइंस चाहिए? 2. तो 2 इधर इंसर्ट किया. 2 हाइड्रोक्साइड आइंस और 2 हाइड्रोजन आइंस मिलकर कितना पानी बनाएंगे? कितने पानी के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? 2 हाइड्रोक्साइड एंड 2 ये, तो 2 पानी बनेंगे. तो 1 2 3 4 सारे बैलेंस हो. तो आइदर यू डू पानी वाला मेथड और आई डोंट रिकमेंड इट, आई रिकमेंड आयंस वाला, क्योंकि आयंस हर जगह काम आएंगे. पानी हर जगह नहीं बनता, आयंस हर जगह बनते. दैट्स इट. तो 2 इक्वेशंस हमने पढ़े. जस्ट इन समरी वी स्टडीड दैट व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड it gives, what does it give? It gives salt and hydrogen gas. And whenever a metal reacts with a base, और बेस, हमने बेस की कौन सी एग्जांपल पढ़ी है? हमने मेटल हाइड्रोक्साइड वाली पढ़ी है अभी. कल मेटल ऑक्साइड वाली पढ़ेंगे. इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दोनों में ये फर्क है, राइट? अच्छा, मुझे एक सवाल है, एक लास्ट क्वेश्चन. सॉरी फॉर गोइंग अप 6 minutes. लास्ट क्वेश्चन. विल एवरी मेटल रिएक्ट विद एन एसिड? बस ये सवाल का जवाब दे दो. और ग्रुप होमवर्क जो है, सारे इक्वेशंस आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ ग्रुप में. इक्वेशन शेयर कर लेता हूँ, आपने फिर अपलोड कर लेने प्लीज, और ये दोबारा करना है. Will every metal react? Only metals which are more reactive than hydrogen. Boom, and we will finish the class on this. Any questions, guys? कोई सवाल है? 3 मिनट आज मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ. कोई सवाल? इंसान को गलती हो जाती है. रिकॉर्डिंग मैंने दोबारा शुरू की. आई फिक्स्ड दिस इज नॉट मेटल, इट इज एसिड. सारे में मुझे कहने सर मेटल और बेस सारे रिएक्ट हैं. भाई अल्लाह अल्लाह करें, बोल दें, कोई मदद कर ले मेरी. एसिड है. सॉरी गाइस. ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग अगेन.